see, now last lecture we already did 10 numericals on chemical kinetics. Now 11th one, substance A reacts with first order kinetics with K, rate constant दिया हुआ है. What will be the rate of reaction after 3.66 hours if the concentration with which we started is 1 molar? Now we know rate will be equal to K into molar concentration of A. This is the formula I need. But the thing is, I cannot substitute A as 1 molar because I have to substitute that A which is there after 3.66 hours. ये जो A substitute करना है, this is the one after 3.66 hours. I cannot substitute initial concentration 1 molar. I have to substitute A at the time of the moment I want to find the rate. And the range can be detected with the rate constant K. तो सबसे पहले K निकालेंगे. Now K is given to us 5.25 into क्वेश्चन में से हमने K बना दिया. क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा में हमें K दिया है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन में से हमने K का वैल्यू लिख लिया. अब A तो 1 मोलार है, लेकिन ये है A आफ्टर 3.66 आवर्स. मतलब वो जो 1 मोलार है ना, वो है A नॉट. और मुझे जो सब्स्टिट्यूट करना है ना, इधर इधर इधर, ये है 18 after 3.66 hours, after time T. T is 3.66 hours. Are you getting me? Yes, ma'am. Now one of the way to find 80 is A naught minus X, where X is the amount disintegrated in 3.66 hours. Correct? X is amount finished in 3.66 hours. तो सबसे पहले फॉर्मूला में डाल देते हैं K इक्वल टू, क्योंकि वही हमें AX ये सब मिलेगा, 2.303 अपॉन T log to the base 10 A naught upon 80. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which I can write as log of A naught upon 80 to the base 10 is equal to KT upon 2.303. Because I want this area ना, A naught 80 में से कुछ तो भी find करना है ना. So this is 5.25 into 10 raised to minus 5 into 3.66 hours. अब ये K अपना पर सेकंड में है, तो टाइम अपना आवर्स में कैसे हो सकता है, उसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा. So into 60 into 60. Correct? Yes, ma'am. Upon 2.303.
कैलकुलेट दिस, कितना आ रहा है? दैट इज द मेन थिंग. You know how to use log. 60 into 60 हो जाएगा 6 6 correct. Yes. Yes. You know how to solve this anti-log? Log of 5.25 plus log 3.66 plus log 3600 minus log 2.303. You know, you don't know? Hello? Tell me, yes or no? मालूम है, नहीं मालूम है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Nobody knows how to use log. That is very horrible. आपको सिखाया होगा log definitely. Okay, you know. have to check from log table, right? Yeah. No, first what I am asking, did you understand ये मैंने लिखा कैसे? मल्टीप्लाई वाले ऐड होते हैं और डिवाइड वाला माइनस होता है, ये पता है? नहीं तो ये ध्यान से देख लो अभी. When I want to solve this, जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं ना लॉग में, वो ऐड हो जाएंगे. Are you getting me? और जो भी डिवाइड है ना वो माइनस हो जाएगा. और जब भी आप लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे तो साथ साथ में पीछे पीछे एंटी लॉग भी यूज करेंगे काटने के लिए. देखो मैथ्स में अगर तुमने बोला इसको +1 करो तो तुम इमीडिएटली बोलोगे -1 भी करो. यू विल ऑलवेज कैंसिल द चेंज मेड. You created some change in the question, so you will cancel the change made finally. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now 5.25 का characteristic 0. 52 का 5 देखो. What is the value? 52 का 5. Value you have to tell me quickly. Hello. Seven to 0. 720. 2. Okay. Plus 3.66 का log 0.36 का 6 देखो. ये तो देख सकते हो ना लॉग बुक से. कितना आया? 36 का 6. सी वेरी केयरफुली. ये नहीं एक जन आंसर दे रहा है बाकी को पता ही नहीं. चेक इट. व्हाट इज बीइंग टोल्ड. 5635. 5635 प्लस 36 का 0. 4 है ये डिजिट तो प्लस 3 पॉइंट. जितने भी डिजिट है उसमें -1 इज कैरेक्टरिस्टिक. 36 का 0. 5563. 5563. अब पहले इतना ऐड कर लेते हैं फिर माइनस वाला लिखेंगे. बरोबर ना? प्लस माइनस दोनों कैसे करेंगे एक साथ? सबको ऐड कर देते हैं यहां तक कर देते हैं.
5382 10, 6391 10, 5611 2, 131 14. Yes or no? 5 5 10 7 17 1 18. Are you getting me what I am doing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब माइनस 2.303 का लॉग 0.23 का 0 का 3, 23 का 0 देखो और उसमें मीन डिफरेंस 3 का वैल्यू ऐड करो. टेल मी. 9623 कितना है देखो. थ्री 3623. अब माइनस कर देते हैं. 10 में 3 गया, इधर आ गया 9, 9 में 2 गया, इधर आ गया 3, 13 में 6 गया. करेक्ट. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ये 7 हो गया कि नहीं? करेक्ट. Yes, ma'am. यू कैन चेक. 3.4777. ये बाय, ये तो 7 है ना ऑलरेडी, ये क्यों कैरी करेगा? हाँ Sorry, ma'am. या. अभी एंटीलॉग देखो. एंटीलॉग ऑफ 0.47 का 7 का 7. अभी देखो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है? ये बन रहा है log a0 by 80 to the base 10 is equal to antilog of 4 point कितना था? 4777. अब तुम्हें इसका एंटीलॉग देखना है. एंटीलॉग में जो आगे कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो 10 का पावर बन जाता है. तो 10 का पावर करके 4 लिख दो. यानी ये वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले वाला. अब एंटीलॉग के टेबल में जाओ, वो डेसिमल से शुरू होते हैं. 0.47 निकालो. ऊपर ऐसा लिखा रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7. 47 के 7 में जाओ. 7 के नीचे देखो क्या है नंबर यहाँ पे. और आगे जाओ, मीन डिफरेंस, वहां का भी 7 निकालो क्या है. ये दोनों को ऐड करके वैल्यू बोलो क्या आ रहा है. Three zero zero four. 300. अब ये जो 3004 आया, इसमें एंटीलॉग का रूल है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं, तो डाल दिया. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को. 10⁻⁻5 मत भूल जाना. डोंट फॉरगेट दिस. आर यू गेटिंग मी? Yes. तो इधर 10⁻5 भी है, यानी इधर 10 यानी आंसर क्या आया? करेक्ट. Yes. करेक्ट. अब तुम्हारा इक्वेशन ये बना, लेकिन तुमको तो 80 चाहिए, राइट ना? यू वांट 80. सो हाउ टू सॉल्व? अब जब भी तुमको इक्वेशन में ऐसे लॉग दिख रहा है एंड यू डोंट वांट दिस, तो द रूल इज टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्या बोला मैंने? Taking anti-log on both sides. So you will write like this: anti-log
log ऑफ, अभी प्लस माइनस कैंसिल होगा या ऐड होगा? प्लस माइनस, +1 -1 क्या होगा? 0. 0। वैसे ही लॉग और एंटी लॉग हमेशा कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो तुम्हें इक्वेशन क्या मिल गया? A0/80 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3। अब एंटी लॉग के टेबल में जाओ, 0.30 देखो, क्या आ रहा है? टू पॉइंट समथिंग आएगा, देखो ध्यान से। कम ऑन, अरे माय डियर, 0.30 का एंटी लॉग तो देखना है खाली, देखो ना एंटी लॉग का टेबल पॉइंट से शुरू होता है। 0.30 का देखो, 0 पहला ही कॉलम, 1995. 995. 5. दैट इज 1995। जैसा मैंने कहा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 का पावर करके लिखना है और फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। यस, नाउ एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 and 1.995 can be approximately taken as, come on, 2. 2. अब A0 और 80 में A0 है हमारे पास 1 मोलार, तो 80 हो गया 1/2, इस तरह से 80 आ गया 0.5। अब इसको अपने K के इक्वेशन में डाल दो, R वाले में, R इज इक्वल टू K इंटू A। यस और नो? Yes, ma'am. K is already given to us. A after 3.66 hours is 0.5. You can find the answer. Yes or no? Yes, ma'am. लिख दो। Miss, can you please show the previous page? Done, ma'am. Ma'am, can you please show from the start? Done? Yes, ma'am.
Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. What is the answer? Two point six two five into 10 raised to minus 5. Huh? 2 6 to 5, ma'am. into 10 raised to Minus 5. unit. Second inverse. No. Mole per liter per second. Second. Because it is molarity into second. ये इसका यूनिट पर सेकेंड है और इसका यूनिट मोलार है. So how it can be only per second? Okay. It is molar per second or mole per liter. Is this clear, everyone? Don't sleep. Ma'am. Okay. I'm giving you another question. The reaction SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2. Is a first order reaction.
with rate constant as what percentage is decomposed? On heating this gas for 90 minutes. Now, in the last question, when I asked you, can you tell me unit of rate? Some of you said per second, which was wrong because the unit was mole per liter per second. Can you tell me? Can anyone tell me? Everybody be attentive. Can any one of you tell me when the unit of rate will be per second? When? Come on, abhi to nahi hai, but when it can be per second? Hello? When it can be per second? Come on. In which situation? Nobody? Ma'am, when we consider only the time, जैसे example, unit of rate can be per second in which order? Chalo, tell me this. In which order? Come on. First order. No. मतलब आपके समझ में थोड़ी सी गड़बड़ है. जो ऑर्डर के हिसाब से वेरी करता है, वेरीज विद ऑर्डर, वो तो के होता है, रेट नहीं होता. रेट कांस्टेंट वेरीज विद ऑर्डर. Right? So unit of rate constant for zero order is mole per liter per time. But for first order, it is only per time. How can rate change? Rate can never vary. Never, ever, never. It can never vary, my dear. Rate is always change in concentration with time. So rate का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम ही आएगा. It can never have any other unit. What do you think? सोता है क्या? How can you change rate का unit?
रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर ही आएगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then how can it change, my dear? Just writing the formula, rate is dA by dt. उससे कुछ फायदा नहीं अगर उसको अप्लाई नहीं किया. dA by dt होता है रेट, तो फिर यूनिट कैसे बदल सकता है? करेक्ट. This doubt is cleared, everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. Can you solve this? You'll try? Or you want me to solve? What percentage of SO2 Cl2 is decomposed? Just think. Solve. चलो चलो भाई, दिमाग दिमाग लगा रहे ना. जल्दी सॉल्व करो.
Where you reached? What you did? Ma'am, that formula K is equal to हाँ ठीक से बोलो. K is equal to 2.303 upon T into log A naught upon A. हाँ, और हमें फाइंड क्या करना है? Percentage decomposed. यानी क्या? A. ए कैसे फाइंड करना है? परसेंटेज डीकम्पोज्ड. Ma'am, X. एक्स फाइंड करना है. यानी कि ये जो फॉर्मूला हम ऐसे लिखते थे, याद है? 2.303 अपॉन टी log to the base 10 a upon a minus x. ये x है decomposed, finished amount. ये a है इनिशियल अमाउंट जो कि है, खत्म नहीं हुआ है. और a माइनस x के बाद जो आया वो है AT, वो भी फाइनल रिएक्टेंट है, वो भी खत्म नहीं हुआ है. जो फिनिश हो गया है वो X है. नहीं समझा? समझा मैम। तो अपने को X निकालना है. डीकम्पोज्ड X कितना खत्म हुआ? How much is finished? So substitute करें? Yeah, so we are using the formula K equal to 2.303 upon T log to the base 10 A upon A minus X. So log to the base 10 A upon A minus X. इसमें से कुछ तो निकालना है, देखेंगे. पहले इतना तो सॉल्व कर दे. करेक्ट? K का वैल्यू क्या है? 2.2 into 10 to the power minus 5 per second. पर सेकेंड. 90 मिनट्स है तो सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 60. ये कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.0515. देन यू रिमेम्बर नेक्स्ट स्टेप, लॉग कैसे हटाने का? Taking Taking antilog. antilog By on both. taking antilog. टेकिंग एंटीलॉग ऑन Both. एंटीलॉग लॉग ऑफ इसका एंटीलॉग निकालो फटाक से. कम ऑन. 0.05 का 1 का 5. हाउ मच? 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए. One 1126. या तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है तो 1.126 ये आ गया. अब इसमें तुम्हारे पास a है कि a माइनस एक्स है?
what you have? A भी नहीं है और a माइनस एक्स भी नहीं, दोनों नहीं है. करेक्ट. Miss, can I leave now? मैं आगे का recording देख लूंगी. बस मैं यही वाला क्वेश्चन सिखाऊंगी, इसके बाद में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने दूंगी. Okay, ma'am. Okay? अभी कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, हाँ मैम. right? So do it. Yes, I want somebody to tell me how to do the calculation. खोपड़ी लगाओ, मैथ्स स्टूडेंट हो. देखो कैसे कर सकते हैं. तुमने फॉर्मूला लिस्ट ध्यान से नहीं लिखी, मैंने उसमें बताया है तुम्हें एकदम अच्छे से. फ्रैक्शन लेफ्ट इज a माइनस एक्स अपॉन a. परसेंटेज लेफ्ट इज a माइनस एक्स अपॉन a इंटू 100. So if fraction left is that, then fraction left यानी remaining. So fraction decomposed is ulta, and percent decomposed मैम आपने पिछले वाले सम में जैसे कैलकुलेशन करके बताया, इसमें भी बताइए ना. हम लोग को लॉग का कैलकुलेशन नहीं आता है. नो नो, लॉग तो आना चाहिए. अच्छा ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं, नो प्रॉब्लम. इसको निकाल देते हैं. वैसे भी ये डिकम्पोज वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा. तुम कैलकुलेशन का जो तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स का थोड़ा गड़बड़ है आपका. देखो तुमको ये आया, log of a upon a minus x to the base 10 equal to 2.2 into 10 raised to minus 5 into 90 into 60 upon क्या था 2.303. ठीक है. अब ये हो गया 2.2 into 9 6 54 5400 upon 2.303 into 10 raised to minus 5. अब इसको कैसे करते हैं, एंटी लॉग डालने का इसमें और लॉग डालने का, और ये जैसा है वैसा कॉपी करना है. यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा.
ये भी जैसा है वैसा कॉपी करना है, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, बस। अब ये हो गया log ऑफ 2.2 प्लस log ऑफ 5400 माइनस log ऑफ 2.303 इंटू 10⁻⁻5। उसका log नहीं लेते वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। अब तुम्हें बोलना है एंटी लॉग, log ऑफ 2.2 का कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले देखने का कितने डिजिट है, एक डिजिट है, दैट 1 में जितने भी डिजिट आए -1 कर देने का इक्वल टू 0। सपोज ये ऐसे होता 30, सपोज ये 2.2 है, रुको वापस से एक चीज लिखती हूँ, ये 2.2 है तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 1, 1 - 1 इज 0, तो 0 कैरेक्टरिस्टिक। सपोज ये 22.2 होता तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो 2 - 1 यानी 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होता। सपोज ये 222.2 होता तो डेसिमल के पहले 3 डिजिट है तो 3 - 1 2 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होता। आर यू गेटिंग मी? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब लॉग बुक में जाओ, 22 का 0 देखो, One 1660. अब 5400 4 डिजिट है तो 4 - 1 3 पॉइंट। 54 का 0 देखो, लॉग देखना, एंटी लॉग नहीं, ध्यान से ऊपर हेडिंग चेक करना, पता लगा हेडिंग ही मैम गलत है। 22 का 34 आएगा 3424 है 3424 आएगा ऊपर। 22 का। ऋषि तुम क्या देखता है बेटा? हाँ, Sorry, ma'am. 0.3424। ओके, ये देखो 54 का 0 का 0, Seven three two four 324 73 two four four. 7324। एवरीवन गॉट? यस। अब इन दोनों को पहले ऐड कर देते, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 4 माइनस डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 0.23 का 0 का 3, मुझे याद है 3623 था, तो 8 में 3 गया 5, 4 में 2 गया 2, 7 में 6 गया 1, यहाँ 0 है, यहाँ से एक कैरी किया, हो गया ये 10, 10 - 3 7 और ये हो गया 3। अब एंटीलॉग देखो, 0.71 का 2 का 5। पहले एंटीलॉग के टेबल में 0.71 निकालो, सबसे पहले निकाला, 0.71 पे पहुंचो, उंगली रखो वहां पे, पहुंचे? यस। अब ऊपर देखो 2 कहाँ लिखा है, वो उसके बिल्कुल सीधे में ऐसे है लॉग बुक, ऐसे 0.71 पे तुम पहुंच गए। अब यहाँ देखो 0 1 2 लिखा होगा तो 2 देखो 71 का 2, यहाँ से एक नंबर है उठाओ और आगे मीन डिफरेंस दिया रहेगा, उसमें 5 पे जाओ और 5 के आगे जो नंबर है उठाओ, इन दोनों को ऐड कर। फाइव 5158 5150 आया, यही था अपना। अब इसको ठीक से लिखते हैं। अब यहाँ है 10⁻⁻5 और ये कितना आया तुम्हारा आंसर? 5158। ठीक है। अब मैंने बताया फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं, फिक्स रूल है। 10⁻⁻5 पहले से था, लिख दिया,
और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये 10 का पावर करके लिखते हैं तो हो गया 10⁻3। इस तरह से क्या आया 5.15 इंटू 10⁻2 तो हो गया 0.0515। 8 नहीं लिखा मैंने। यस मैम। देखो लॉग कितना एक्यूरेट होता है। एक दिन करेंगे लॉग का, थोड़ा सा सिखाऊंगी। अभी जितना सॉल्व कर रही हूँ उतना समझ आ रहा है ना? Calculation. हाँ Ma'am, we can do the calculations directly also, ना? यस कब बेटा थोड़े बड़े कैलकुलेशन है ना, रॉन्ग आता है, कैलकुलेटर वगैरह नहीं होता ना, लॉग पढ़ का जरूरत लगेगा। और सीबीएसई में तो स्पेशली मार्क्स है, जहां बड़ा कैलकुलेशन है 1 मार्क लॉग का है, इवन स्टेट बोर्ड में 1 मार्क लॉग का है। ये सब एक्सपोनेंट से नहीं कर सकते हैं। So log of a upon a minus x to the base 10 is this 0.05158। ठीक है, अब आगे की स्टोरी तो पता है, लेकिन एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो गया एंटीलॉग, लॉग ऑफ ये एंटीलॉग लॉग कैंसिल, तो ये आया a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू, ये कितना आया था 1126, और मैंने बताया फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, अब मैंने अभी भी फॉर्मूला देखा, फ्रैक्शन लेफ्ट इज a माइनस एक्स अपॉन a, फ्रैक्शन लेफ्ट, फ्रैक्शन लेफ्ट इज a माइनस एक्स अपॉन a, मतलब इसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर देते, देयरफॉर a माइनस एक्स अपॉन a विल बी 1 अपॉन 1.126। यस और नो? यस मैम। अब 1 अपॉन 1.126 सॉल्व करोगे तो आता है 0.888। ओके, यस मैम। फ्रैक्शन लेफ्ट ना, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग लेफ्ट यानी रिमेनिंग। तो अब a माइनस एक्स अपॉन a, तो परसेंट लेफ्ट परसेंट रिमेनिंग क्या आएगा 0.888 इंटू 100 यानी कि 88.8। अगर ये रिमेनिंग है, आज की तारीख में ये रिमेनिंग अमाउंट है और मुझे डिकम्पोज्ड अमाउंट निकालना है, so therefore percent decomposed is 100 minus 88। ओके, कितना आया वो 11.2%। Is this clear? Yes ma'am. Everyone? Yes, ma'am. We have done every type of question। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया अब तक, जो भी कैटेगरीज है। अभी तुम लोग क्या करो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक निकालो और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकालो और क्वेश्चन 1 to 10 खत्म करो। Are you getting me? Yes ma'am. Yes, ma'am.